Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic business news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ा आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में कार्यक्रम में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। नंबर्स अभी मेरे सहयोगी कमल ने आपको बताए। हम नंबर एक बार फिर दोहराए देते हैं, 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। तो इन नंबरों पर आप फोन करके सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हेडलाइंस। Equity benchmarks gain 0.25% amid positive Asian cues. Sensex closes at 34,371. Nifty settles at 10,167. Asian shares rise after recovery in US employment, lifting hopes of a quicker global economic recovery. And crude prices surge after major producers agreed to extend output cuts. एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों में 0.25% की बढ़त। सेंसेक्स 34,371 पर हुआ बंद। निफ्टी 10,167 पर पहुंचा। अमेरिका में रोजगार के अवसर बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीदों से एशियाई शेयर बाजारों में बढ़त का रुख। और प्रमुख तेल उत्पादक देशों के उत्पादन में कमी करने पर सहमति के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में आया उछाल। और शुरुआत बाजारों से ही कर लेते हैं। शेयर बाजारों में आज प्रमुख शेयर बाजार शुरुआती तेजी गंवाकर मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख सूचकांकों में लगभग 0.25% का उछाल देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में एक समय 640 अंक तक चढ़ने के बाद कारोबार के आखिर में 0.24% की बढ़त से 83 अंकों पर 34,371 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25 अंक की बढ़त से 0.25% ऊपर 10,167 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.23% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। At the stock markets, equity benchmarks today surrendered most of the day's gains to end marginally higher as investors chose to book profits after a swift market rally. Key indices surged 0.25% amid positive Asian cues. After surging over 640 points in early trade, the 30-share BSE index Sensex settled 83 points or 0.2% higher at 34,371. Similarly, the NSE Nifty 50 closed 25 points or 0.3% up at 10,167. In the broader market at BSE, mid-cap rose 0.2% while small cap gained 0.9%. IndusInd Bank was the top gainer in the Sensex pack, soaring around 7%, followed by Axis Bank, Bajaj Finance, ONGC, Titan,
Infosys and Tech Mahindra. Shares of Reliance Industries jumped around 3% during the day, hitting their one-year peak after the company sold 1.16% stake in its digital unit Jio Platforms to Abu Dhabi Investment Authority for around 5,684 crore rupees. However, it closed 0.5% lower as investors cashed in on recent gains. Mahindra and Mahindra, Ultratech Cement, HDFC Bank and Nestle India were among the laggards. Market opened on a positive note following positive cues from Asian pairs. However, during the afternoon session, benchmarks gave up most of the gains on profit booking by traders after an almost 1200 points rally in Nifty since last week. जी, आज प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर गुरुग्राम से मनोहर झा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। यस प्लीज। जी मनोहर जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा प्रश्न ये, मैं रिटायर होने को हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये कोविड-19 का केस आ गया जी, और मैं मार्केट पे रहा हूँ और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह जी। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ क्या क्या इस समय मेरे जैसे किसी आदमी को अपना कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वगैरह में लगाना चाहिए ताकि रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक अच्छी इनकम 2-3 साल के बाद शुरू हो सके। जी देखिए, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाएं तो बहुत स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो अभी अच्छा कर रही हैं, उनमें लगाएंगे तो एक रिटर्न है। बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी बहुत ग्रोथ नहीं है। दो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट विद इन 2 to 3 years ये कहना कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाएंगी तो आपका लॉन्गर पीरियड अगर होराइजन हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। Devendra is joining from Mumbai. Devendra, ask your question, please. हेलो सर जी। जी Hello? जी, हाँ देवेंद्र जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? मेरा जो अकाउंट है वो महाराष्ट्र बॉम्बे यानी भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट का कोई भी चीज हो तो वो लोग हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। आपका क्या करें? बैंक से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपका सवाल ये है? और गवर्नमेंट का जो स्कीम दिखता है ना, अच्छा अच्छा, जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है जी जी अकाउंट में दे रही है, जी। तो अगर वो हमको पता नहीं चलता है तो हम उसको कंप्लेन कहाँ पे करें? जी, आप किसी पर्टिकुलर स्कीम से अगर रेफर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे जाकर के आपको कंप्लेन करनी होगी। अगर आपको बैंक से कोई जानकारी चाहिए तो उनके कस्टमर केयर नंबर्स कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, आप उन पे कर सकते हैं। वरना आप ब्रांच मैनेजर से भी पता कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो क्यों नहीं आया है। अगर आप एक क्वालिफाइड पर्सन है जिसको एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत पैसा मिलना चाहिए तो। Keshav is joining in from Mumbai. Keshav, ask your question. यस, गुड इवनिंग सर। Good evening. अभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो क्या मार्केट और नीचे जाएगी? क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? थैंक यू। जी, मार्केट्स काफी लो लेवल पे पहुंच गई हैं और ये उम्मीद है कि जैसे रीओपन हुई है, जैसे आज भी मार्केट्स अनलॉक हुई हैं और बाकी जगहों पे खोला गया है, जैसे मॉल्स वगैरह खोले गए हैं, तो एक इकोनॉमी में जैसे जैसे ऑपरेशनलाइज होगा तो मार्केट धीरे धीरे बढ़त पकड़ेगी। कितनी स्लोली और ग्रेजुअली पकड़ती है वो ये डिपेंड करता है कि लोगों का पेसिमिज्म खत्म कब, कितनी फास्ट होगा ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर के। अभी काफी फियर है कोविड को लेकर के, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं लोगों ने अभी भी कम्प्लीटली ऑपरेशनलाइज नहीं किया है। 33% गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है, तब भी उसमें भी ऑपरेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये लो लेवल्स हैं, पर जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब डिप जरूर हो सकता है, पर उस लो लेवल पे नहीं पहुंचेगी जिस लेवल पे वो अभी है। जी यमिनी, अगर ये देखें यहाँ पर तो पिछले कुछ दिनों से पिछले जो कारोबारी सप्ताह था उसमें बीएसई की बात करें या एनएसई की बात करें, निफ्टी की बात करें, दोनों में ही ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है।
तो अब जो एक इसमें निवेशक के लिए क्या संकेत आप देखती हैं? क्या उसको अब मार्केट में निवेश के लिए, बाजार में निवेश करने के लिए कुछ आगे आना चाहिए, या अभी थोड़ा सा और उसको वेट एंड वॉच वाली जो नीति होती है, इंतजार करो और देखो की नीति अपनानी चाहिए? जी देखिए, इकोनॉमी को ऑपरेशनलाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसलिए जो मार्केट थी वो काफी लो लेवल पे पहुंच गई थी। अब उसमें बढ़त की ही उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी जो ऑपरेशनलाइज करेगी वैसे वैसे जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगी और मुनाफा रजिस्टर कर पाएंगी। पर ये कहना कि लॉकडाउन का असर एकदम से टैपर ऑफ हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा सा धीरा समय लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। तो मार्केट्स को भी गेन बैक करने के लिए, अपनी पोजीशन के लिए 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। उन सेक्टर्स में या उन कंपनीज में जहां पे लॉकडाउन का असर सबसे कम होगा, या फिर जो असर है वो आगे बहुत स्ट्रेच नहीं रहेगा, उनमें इन्वेस्ट करने का फायदा रहेगा। कुल मिलाकर के धैर्य के साथ, सावधानी के बरतते हुए निवेशकों को आगे बढ़ना होगा। और अब दिल्ली से हमारे कॉलर हैं हरिदास। हरिदास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार सर, मेरा नाम हरिदास है। मैंने अपने मिसेस के नाम से एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है 4 लाख रुपया जी। तो उसका ब्याज कितने % मिलेगा हमें? जी, जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूनिट्स आप खरीदते हैं और उन यूनिट्स का नेट एसेट वैल्यू निकाला जाता है। जो भी मार्केट वैल्यू होगी, जिस सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उसका टोटल वैल्यू निकाल करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने इशू किया है उससे डिवाइड किया जाएगा। तो आपकी यूनिट्स का जो नेट एसेट वैल्यू है वो आपको मिलेगा। तो आप मार्केट में अभी, क्योंकि काफी लो है, ये समय नहीं होगा रिडीम करने का। आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप अभी अगर रुक सकते हैं तो कुछ समय के लिए रुकें, ताकि मार्केट जब बढ़े तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू मार्केट के हिसाब से बढ़ जाए। Gaurav is waiting on phone line from Ghaziabad. Gaurav, ask your question, please. Madam, good evening, Madam. My question is about cash dispersal for boosting economy, which government of India is not opting for. Maybe can they do tax rationalization to like 28% slab could be brought into 18%, so that the people will get benefit, not directly but at least indirectly cash will come into the economy. So why are we not doing that? At least if not giving cash straight away to the economy. As far as I could understand the question, one was for cash dispersal. So as far as cash dispersal is concerned, the government has made cash dispersals for the vulnerable groups, for the farmers, for the women, and for others. Migrant workers have been given food and other benefits which are there. So there are benefits which have been given. Besides, sectoral benefits have been given to DISCOMs, MSMEs, and the agriculture sector. The purpose of not giving loan waivers or what we say is a direct cash transfer of a higher amount is primarily because it will have an effect on the overall fiscal deficit, which would then want the government to monetize the fiscal deficit, which would lead to a spiral high inflation. And in a situation where there is low economic growth and high inflation, we will reach a direct stagflation, and which will be very difficult for the government to overcome. Again, fiscal sustainability is one important aspect. Second, if the government wants to even give cash dispersals which are there, it will have a direct impact on the taxpayers. So who will be the ultimate people who would be paying for these cash dispersals are the taxpayers. So it would be beneficial that the government provides for financing facility to the people who need funds rather than giving loan waivers or cash disbursements. The other question was about GST, which could be the rationalization of GST. Yes. So when we talk about rationalization of GST, there has been a continuous review and monitoring that has been going on with respect to the rationalization of GST. It would be better if the sectors are more rationalized by bringing them into lower tax brackets. But given the financial position of the government, as you may be reading from the newspapers,
that it is not in a fiscal position to reduce the taxes because neither the direct tax collections nor the indirect tax collections have been able to meet the estimates that are there, which makes the gap of the fiscal deficits much widened and making it more difficult for the government to rationalize the GSTs at the moment. Ratnakar is waiting on phone line, but we request him to just wait. Before that, we take a story. The rupee today settled on a muted note, up 3 paise at 75 rupees and 55 paise against the US dollar, as dollar buying by banks as well as importers and rebounding crude prices restricted gains of the local unit. Forex traders said positive domestic equities, sustained foreign fund flows and the revival of business activity are supporting the rupee. But dollar demand and rising crude prices are weighing on the domestic unit. Ratnakar, please ask your question now. हेलो, गुड इवनिंग सर. Good evening. मेरा सवाल है कि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर का आगे फ्यूचर क्या है, यानी वो बढ़ सकता है क्या? और दूसरा कि फार्मा सेक्टर अभी हाईएस्ट स्तर पर है क्या, उसमें गिरावट आ सकती? जी, पहला आपका क्वेश्चन है ऑटो और एफएमसीजी को लेकर के. एफएमसीजी इस समय पर एक काफी अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी उतने लो पे नहीं आएंगे जितने लो पे बाकी कंपनीज के होंगे. जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, वहां पे अभी प्रोडक्शन में कट्स भी हुए हैं और कोई ग्रोथ नहीं है. तो इस समय इन्वेस्ट करना शायद अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा एवेन्यू है, बट अगर आप 1 या 2 साल में कोशिश करें कि आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए तो वो नहीं मिलेंगी. आपका तीसरा था फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल सेक्टर पेंडेमिक में ऑब्वियसली ग्रोथ दिखा रहा है और आगे आने वाले समय में भी जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स बढ़ रहे हैं और जेनरिक ड्रग्स को सपोर्ट किया जा रहा है, देखा जाएगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्रोथ आएगी. जी, अब श्रीकांत देशमुख हमसे जुड़ गए हैं थाने से. हेलो. हेलो जी, श्रीकांत जी. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और वो कैसा कैलकुलेट करते हैं? जी, ओपन इंटरेस्ट आपके जितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं minus the contracts which have been squared off are known as the open interest, in which you have a stake in terms of the payment which is due. So that is referred to as the open interest. और अब एशियाई बाजारों के आज के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं. अमेरिका में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की खबरों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीदों के बाद आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में बढ़त का रुख देखा गया. जापान का निकेई 1.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.7% ऊपर बंद हुए. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना रहा. यूरोपीय बाजारों की शुरुआत आज कुछ कमजोर रही. हालांकि अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन के फुट्सी और जर्मनी के डैक्स में 0.1% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जबकि फ्रांस के कैक में 0.1% की मामूली गिरावट आई. Gopal is waiting on phone line from Mumbai. Gopal, ask your question, please. हाँ जी, मार्केट मनोज नमस्कार जी. नमस्कार सर, मेरे टोटल 3 सवाल है, तो चलेगा? पूछूं? बहुत छोटे छोटे हैं सर. जी, पहला सवाल तो ये है कि जो सर ये सरकारी बैंकों में रौनक कब आएगी, पहला सवाल ये है. दूसरा सवाल ये है कि जो बाकी जो मार्केट है, जैसे एशियन मार्केट है और ये यूरोपियन और ये अमेरिकन मार्केट है, लगभग ये प्रीवियस है कि जब तक क्लोज ही है. हम लोग की मार्केट अभी भी 8000 के पॉइंट नीचे है. तीसरा सवाल है कि ये महंगाई के बारे में, ये जो गवर्नमेंट ने ये पल्सेस और आलू और प्याज को जो उसमें से बाहर निकाल दिया है, उसके बाद इनके रेट में कुछ ऊपर जाएंगे कि सर नीचे आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये लॉकडाउन के बाद पल्सेस के भाव तो डबल हो चुके हैं, तो आगे महंगाई और बढ़ेगी कि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसका क्या कारण क्या है इसको अलग करने का? जी, आपका पहला सवाल
जो था वो मैं मिस कर गई। बैंकिंग शेयरों में, बैंकिंग शेयर्स में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अगर आप देखें तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा रजिस्टर एसबीआई ने ही किया है, और जितने भी लोन्स के अंदर जो अभी एमएसएमईज को दिए गए हैं वो भी एसबीआई ने दिया है। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात है, एसबीआई लीड बैंक में है, और बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें रिकैपिटलाइजेशन की गई है ताकि वो गेन कर सकें। शेयर मार्केट्स में एसबीआई के शेयर्स अच्छा करते हैं और बाकी के शेयर्स भी ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के एनपीएज हैं वो अभी भी ट्रबलसम है। आपका दूसरा सवाल था कि हमारी मार्केट्स कब स्ट्रेंथन करेंगी। जैसे मैंने कहा, इकोनॉमी जैसे जैसे ऑपरेशनलाइज करेगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ गेन करेगी। जैसे ही अनलॉक हुई हैं वैसे ही मार्केट्स ने कुछ गेन किया है, पर क्योंकि अभी वो फुल फोर्स में नहीं आई है और लोग काफी डरे भी हुए हैं और वो 33% ऑपरेशनलाइजेशन स्ट्रक्चर में है और स्लोली ग्रेजुअली खोल रहे हैं, इसलिए अभी आपको मार्केट्स में बढ़त उतनी नहीं दिख रही है। आपका तीसरा सवाल था महंगाई का। जो महंगाई है वो पल्सेस वगैरह में कोशिश की जाएगी कि प्रोडक्शन और सप्लाई से कंटेन की जाए, जो काफी हाई लेवल पे है अभी और कंटिन्यूसली इंक्रीज किए जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन किया जा सके, फार्मर्स को उनके फसल का मूल मिल सके। उसके लिए कुछ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंजेस लाने की बात की जा रही है और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और बाकी फैसिलिटीज की बात ही की जा रही है, क्योंकि फार्मर डिस्ट्रेस एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीजें लाई गई। महंगाई का दर कोरोना की वजह से और कोविड की वजह से काफी लो है, पर प्रेशर अभी भी फूड ग्रेन्स पे है क्योंकि वो कंजम्पशन कंटिन्यूस है। जी, संजय इज फ्रॉम मुंबई। संजय, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो संजय, आर यू ऑनलाइन? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या सर, ये डीलिस्टिंग का रूल्स जो रॉन्ग है, मैं सर 90% प्रमोटर्स के हाथ में शेयर आ गए और डीलिस्टिंग करवा सकता है, तो स्मॉल शेयर होल्डर लॉस में जाते हैं। और वैसा नहीं हो सकता है कि सपोज उसमें 40 रुपया प्रमोटर ने बोला कि भाई आपको 40 रुपया दे रहा हूँ, तो स्मॉल इन्वेस्टर नहीं बोल सकता कि मैं आपको 45 रुपीज दे रहा हूँ, आप शेयर छोड़ दीजिए। इज पॉसिबल? जी, जब डीलिस्टिंग होती है तब यूजुअली कंपनीज इन्वेस्टर्स को एक प्राइस ऑफर करती हैं ताकि वो अपने शेयर्स बेच सके, जिसके तहत उन्हें एक एग्जिट रूट मिल सके। क्योंकि वो एक साइड का ऑफर होता है इसलिए उसमें डुअल ऑफरिंग नहीं होती, दूसरा शेयर होल्डर नहीं ऑफर कर सकता। पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग्स में ये इशू रेस कर सकते हैं और डीलिस्टिंग को स्टॉप करने के लिए अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। पर क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे ही चलता है, तो इसलिए अगर वो डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर स्टोरी, कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। Moving on to next story, Enforcement Directorate today conducted searches at 5 premises of promoter, directors and auditor of Cox and Kings Group in Mumbai involved in Yes Bank fraud case of 3,642 crore rupees. The agency had registered a money laundering case against Rana Kapoor and others in March this year under the provisions of Prevention of Money Laundering Act on the basis of a FIR registered by Central Bureau of Investigation. In the FIR, it was alleged that during the April to June 2018, Yes Bank Limited had invested 3,700 crore rupees in the short-term debentures of Dewan Housing Finance Corporation. Simultaneously, Kapil Wadhawan, MD of DHFL, paid a kickback of 600 crore rupees to Rana Kapoor and his family members in the garb of loan given by DHFL to Rana Kapoor Group Company, DOIT Urban Ventures Private Limited.
The investigation revealed the role of Rana Kapoor in money laundering, and he was arrested by ED on 8th of March, and he is in judicial custody now. जी, और गाजियाबाद से नीरज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नीरज। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, आजकल बैंक एफडी से काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, और सर कुछ बैंक अभी भी जो है कि इंडसइंड बैंक है या फिर यस बैंक जैसा नहीं पता है, अभी भी काफी अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो क्या ये बैंक सब सेफ हैं, अभी कर सकते हैं इन्वेस्ट? जी, आमतौर पे कॉशन मेंटेन किया जाता है अगर कोई बैंक मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। येस बैंक के अभी मॉरेटोरियम हटा है और इंटरेस्ट इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि उनके पास फंड्स की सप्लाई नहीं है। इंडसइंड बैंक का कोई स्पेसिफिक इशू नहीं आया है, इसलिए कहना मुश्किल है, पर सेफ यही रहता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्ट करें, और अगर कोई एक्सट्रीम साइड पे जा रहा है या बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशन मेंटेन करें। Madan Patel is waiting online from Madhya Pradesh. Ask your question, Madan. सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो शेयर मार्केट में हम सुनते हैं कि आज शेयर मार्केट 34,000 पे बंद हुआ या 35,000 पे बंद हुआ, तो सर इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शेयर मार्केट की वैल्यू 35,000 है, या फिर हम इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनकी वैल्यू 34,000 है? इसका क्या मतलब रहता है सर, मैं ये नहीं समझता। जी, बहुत बुनियादी सवाल यामिनी जी, बताइए। जी, जब शेयर मार्केट हम कहते हैं कि एक अंक पे बंद हुई है तो उसका मतलब होता है कि जो 30 स्क्रिप्ट्स हैं उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं उस पे एक वैल्यू निकलती है कि वो कितना बढ़ा या घटा, वो 30 स्क्रिप्ट्स के बारे में बताता है कि वो कितना बढ़े या कितने घटे। In the oil market, crude oil today climbed after major producers agreed to extend a deal on record output cuts to the end of July, and as China's crude imports hit an all-time high in May. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $42.50 per barrel, while US crude prices were at $39.60 per barrel. और अब बात सोने की करें, इससे पहले अजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मुंबई से। हेलो अजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? सर, जैसे स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, और अगर मुझे सीखना है तो कैसे, कहाँ, क्या उसका अच्छा सबसे बेहतर होगा जी सीखने के लिए शेयर मार्केट में? जी, अगर आप शेयर मार्केट में इनिशियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा छोटी इकाइयों में एक यूनिट खरीद सकते हैं, कुछ यूनिट्स खरीद सकते हैं जो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करती हैं, और उनके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो मैनेज करते हैं शेयर मार्केट्स को। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक डीमैट अकाउंट की, जिसके लिए आप किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर को कॉल कर सकते हैं और आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप बैंक पे भी जाकर के, कुछ बैंक्स डीमैट अकाउंट्स ऑफर करते हैं, वहां पे भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और फिर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी शेयर मार्केट में खरीदने या बेचने के लिए बेहतर होगा कि आप शेयर्स के बारे में पढ़ें और शेयर्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट, जैसे क्या बिजनेस करती है वो कंपनी, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कैसे लिक्विडिटी है, आगे के क्या फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, और इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है, ऐसे कुछ चीजों के बारे में। यामिनी, समय की हमारे पास बहुत कमी है और अब हम चलते चलते बस सोने के आज के क्या भाव रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नजर डाल लेते हैं। तो आज न्यूयॉर्क में सोने में तेजी आई और ये $1,699.30 प्रति औंस पर पहुंच गया। और यामिनी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं के जवाब दिए सवालों के, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks gain 0.25% amid positive Asian cues. Sensex closes at 34,371. Nifty settles at 10,167. Asian shares rise after recovery in US employment, lifting hopes of a quicker global economic revival. And crude prices surge after major producers agreed to extend output cuts. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Master.